From the nation's tribute to former Prime Minister Manmohan Singh to Khan Sir's attack on BPSE and the reason behind the Tamil Nadu BJP chief's self-inflicted whipping, here are the major stories of the day in this news wrap. Hi, I'm Khyati Rajvanshi and you're watching the Indian Express. Let's get started. National and international leaders paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on Friday at his residence in the capital. Condolences have poured in from around the world following his passing. Leaders from neighboring countries, including the Maldives and Afghanistan, expressed deep sorrow and highlighted his remarkable contributions and the strong, warm relations he nurtured with their nations. Dr. Singh passed away at the age of 92 on Thursday at Delhi's AIIMS Hospital. His final journey will begin from the All India Congress Committee headquarters at 9:30 a.m. on Saturday. Listen to what the Prime Minister said on the demise of Manmohan Singh. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग-अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। At least 8 people were killed in a bus accident in Bhatinda, Punjab on Friday, according to Bhatinda Urban MLA Jagrup Singh Gill. 5 victims died on the spot, while 3 others succumbed to their injuries during treatment. The accident occurred near Jiwan Singh Wala village in Bhatinda, where the bus collided with a bridge before plunging into a drain. National Disaster Response Force (NDRF) personnel and police were called to assist in the rescue operations. Locals also played a crucial role, helping to move the injured to safety. इसमें जी जो इंसिडेंट आज बड़ा अनफॉर्चुनेट तलवंडी साबो में हुआ है, इसमें टोटल 46 पैसेंजर्स निकाले गए हैं और जो हॉस्पिटल भेजे गए थे तलवंडी साबो सिविल हॉस्पिटल और इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें टोटल 8 डेथ्स कंफर्म हुई हैं और बाकी सारों की सिचुएशन हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। कोई लापरवाही पाई गई है? किसकी लापरवाही? जो जी मौके पे जो स्टेबल पैसेंजर्स हैं उन्होंने बताया कि बस भी स्पीड में थी तो आगे से एक ट्रॉला भी स्पीड में आ रहा था, तो जो बस का ड्राइवर है वो भी नहीं संभाल पाया, ऊपर से बारिश भी थी, तो जब उनका आपस में टकराव हुआ है तो मतलब बस पलट गई, तो उसके बाद वो वहाँ नाले में गिर गई। मेल फीमेल में पता लगे कितने बच्चे कैजुअलिटी? एक दा जी 2 साल दी बच्ची है ना जी जो कैजुअलिटी है और among the 8 rest details आपको पता है।
Tamil Nadu BJP President K. Annamalai whipped himself in Coimbatore as a protest demanding justice for a 19-year-old girl allegedly sexually assaulted at Anna University. On Thursday, Annamalai declared that he would fast for 48 days and remain barefoot until the DMK is removed from power in Tamil Nadu. BJP and AIADMK leaders also led a protest on December 26th, which ended with their detention by the police. Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, putting ourselves through a very tough rhythm is all part of this culture. And this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened at the Anna University is only a tipping point. If you look at what is happening in the last 3 years, continuous injustice against common people, against women, against children, high corruption that is happening, and more importantly, the administrative inefficiency in which the common men are affected every single day. Inefficiency of government hospital is costing the lives of somebody. So yesterday we have announced it, and I have chosen to go the path which a lot of my forefathers have walked in this path. And flogging ourselves, what we call whipping, what we call satayadi in Tamil, is only a process of surrendering to the higher power, surrendering to the God. And removing to the chapel, I have taken this decision with a lot of consideration, because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting, it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. So I request all the cadres and all the leaders to work more harder in the state, because coming 2026 our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost glory. The BPSC candidates' protest in Gardani Bagh, Patna shows no signs of stopping, with more support pouring in. Today, educator Khan Sir joined the protesting students and expressed his solidarity. He made it clear that the protest would not end until the BPSC exam is cancelled, raising questions about the decision to cancel the exam only at Patna's Bapu Center. Khan Sir pointed out the unfairness of this selective action and asked why the exam wasn't being reconducted across all of Bihar. He reiterated that the students deserve a fair chance to appear for the exam and vowed the protest would continue until their demands are fulfilled. The movement is gaining traction as candidates push for a fair examination process. हमें कुछ भी कहो, नॉन सीरियस कहो, अभिषेक को बुला, लेकिन हमारा क्या मांग है? हम सब क्या मांग? हम सब क्या चाहते हैं? एक किनारा, एक ही मांग, एक किनारा, एक ही मांग, एक किनारा, एक ही मांग। बताइए सबूत किसने छुपाया? सबूत किसने छुपाया? किसने सबूत छुपाया? सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाया? एक सेकंड, ये थोड़ा जो बजा रहे हैं तो यहाँ ये लोग इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आवाज नहीं निकल रहा है। देखिए बेतिया में एक कॉलेज है, जीवन इंटरनेशनल, कोई है बेतिया का? उधर कोई ऐसे करके जीवन है इंटरनेशनल, तो वहाँ पर रूम नंबर 20 और 21 पर वहाँ पर ऐसा सूचना आ रहा है कि जो एब्सेंट था उसका बेंच बाहर निकाला गया, और जब विद्यार्थी बाहर गए तो उस एब्सेंट बेंच वाले पे कुछ लोग बैठ के परीक्षा दे रहे थे। तो आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, शर्म करो, बीपीएससी डूब मरो। जितने विद्यार्थी हैं सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे। हम लोग आज चूंकि राष्ट्रीय शोक है, एक चीज ध्यान देंगे लोग, विद्यार्थी लोग सब लोग, अरे बाप रे बाप, एक बार आ जाइए आप एक बार। अरे देखिए ये बच्चा ऑक्सीजन लगा था, इस बेचारे को सांस नहीं ले पा रहा था। अरे बाबू इधर आ जाओ, अरे आओ बाबू जल्दी ऊपर आओ, अरे बच्चे, ए भैया उतर जा, कहीं नहीं उतर, सब चोचा पकना चाहूंगा। ये जो है इनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। आज देखिए, आज अपने सामने ये हिम्मत है, बिना खाए पिए डेलीगेशन में जा रही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो लोग बोल बात करेंगे। हम यहाँ पहले बता रहे हैं जो डेलीगेशन में जा रहे हैं, आपको बोल बात बोला जाए।
जाएगा कि इतना खर्चा आएगा, इतना अगर खर्चा आएगा तो क्या हम लोग दोबारा पैसा नहीं दे देंगे? देने के लिए तैयार है ना? अरे हम लोग चंदा जुटा के देंगे, जरूरत पड़ेगा ना तो किडनी बेच देगा आदमी, लेकिन हम सबके सामने करें, पीछे नहीं हटेंगे। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली किए हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। और इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय तक को भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है। यहाँ पर समझा क्या कि नहीं? पहले देश का जीडीपी गिरा, उसके बाद बिहार में पुल गिरा, अब बीपीएससी गिर गया। अरे अब कितना गिरेगा बीपीएससी? ये लोग डेलीगेशन में जा रहे हैं, एक ही बार आप सब लोग को एक ही मांगे क्या जी? Delhi and its surrounding areas experienced a rainy morning on Friday, with the India Meteorological Department (IMD) issuing an orange alert and predicting more showers throughout the day. Traffic disruptions were reported in several areas of the capital due to fallen trees caused by strong winds. According to the IMD, the sky is expected to remain overcast with light to moderate rain continuing into Saturday. The forecast also includes shallow fog on Saturday morning, followed by light to moderate rainfall in the evening. Temperatures are expected to range from a minimum of 12 to maximum of 19 degrees Celsius. IMD officials attribute the change in weather to a strong western disturbance, which has also brought snow to parts of Himachal Pradesh and Uttarakhand. मैडम देखिए, अभी का जो स्थिति है, हमारा पूरा इंडियन रीजन के ऊपर एक ईस्टर्ली वेव आ रही है। वो ईस्टर्ली वेव काफी डीप है और डीप होने के साथ साथ मॉइस्चर वो बे ऑफ बंगाल से पूरा सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट इंडिया का भी सदर्न पार्ट्स, इन सभी जगह में मॉइस्चर काफी आ रही है। ये मॉइस्चर आने से हमारा धीरे धीरे अभी टेम्परेचर्स बढ़ने की संभावना है। और इसी के साथ एक और पश्चिम विक्षोभ आपका 60 डिग्री ईस्ट पे है, इसका जिसका क्लाउडिंग अभी आप देख रहे हैं, और यही सिस्टम आपका धीरे धीरे ईस्ट की तरफ मूव करेगा। जब भी ये वाला सिस्टम ईस्ट की तरफ जाएगा और ईस्टर्ली वेव जो बनके यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगा, दोनों का इंटरेक्शन होगा आज रात से लेके कल रात तक। तो आज रात से ही हमारे उम्मीद है कि आज शाम से हमारी उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, खासकर पूर्वी राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में। कल हमारी उम्मीद है कि हेल स्टॉर्म्स होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों फीचर ही नहीं, हमारा जेट कोर भी बहुत फेवरेबल रख रहा है। तो हम लोग हेल स्टॉर्म का चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के साथ दे रहे हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट के साथ और वेस्ट उत्तर प्रदेश में। बाकी हम येलो अलर्ट के साथ दे रहे और हम मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में भी ऑरेंज अलर्ट जा रहा है कल के लिए हेल, और साथ में गस्टी विंड्स भी रहेगी। आपका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स चलने का उम्मीद है। साथ ही साथ हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बाकी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कल बहुत बढ़ने की संभावना है। That's all for today, but here's a glimpse of the fresh snowfall in J&K's Ganderbal.